congratulations from Reliable IS and really thankful to give your the time to our UPC aspirant. Now Yes. we start our sections to prelims, mains, and maximum students expect from your 2025-26 strategy and planning for upcoming exams. Okay, sir. Thank you. Welcome. Okay. Hello, everybody. Good morning. My name is Smith Panchal. I've just got the All India rank 30. I'm 22 years old. So first of all, let me just give you a brief introduction of myself. So I was born and brought up in Ahmedabad. I've done my graduation in political science from Ahmedabad itself. I completed my graduation in 2022, and from then onwards, I started full-time preparation. And during my first attempt, that was in 2023, I could not clear the prelims. I was failed in CSET. But then in second attempt, this was my second attempt, so I could clear the prelim mains, and of course, I have got the rank 30. So basically, this session, I will try to tell you the things that have worked for me and how it can help you in some ways. And if comfortable with Hindi, then we will do in English, mixed language. Then it will be better for me to express my journey also. Right. So as I said, the journey was of two attempts. So first attempt, I could not clear the prelims itself, and I started my dream for becoming an IAS early when I was 17, and after the 10th, I decided that I want to pursue this journey, and I took the arts. Now, usually, what happens is in Gujarat, there is a stereotype that only if you do not know, you do not have any knowledge, or you have 60%, then you can get arts. So, for that reason, actually, I have studied in vernacular language. I was in Gujarati medium. Then I had to change my medium also. So, over the period of time, it has been a journey of 7-8 years. I have tried and failed multiple times. So it was a test and try and give your best, like that kind of situation. And multiple things have worked for me. So for prelims, because my biggest setback was prelims only. So मैं prelims से clear नहीं कर पा रहा था. तो first attempt में यही हुआ था. And even in prelims, GS was more of a sorted thing for me. CSET में ही मेरा थोड़ा ऐसा रह जाता था कि I failed in my first attempt. I failed by 2.5 marks, and that was also because I could not manage my emotions well at that time. जैसे अगर प्रीलिम्स की बात करूँ 2023 में, तो जीएस का कट ऑफ था 74 एंड आई स्कोर्ड 100. तो जीएस में मैं ऑलरेडी 25 मार्क्स ज्यादा था मेरा कट ऑफ से, बट सीसेट की वजह से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फोकस शुड बी कि प्रीलिम्स भी पहले तो प्रीलिम्स ही निकालो. अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो देन कितनी भी आंसर राइटिंग करोगे, कितने भी रट्टा मारोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. यू आर नॉट गोइंग टू गिव योर आउटपुट. तो अभी जो स्टेज है, जैसे अभी 25-26 के लिए, या फिर जो अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो उनके लिए तो फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि फुल थ्रोटल यही प्रीलिम्स ही है अभी जो है. अभी ऐसा ही सोचना चाहिए कि प्रीलिम्स ही एक ही स्टेज है. अगर प्रीलिम पास तो यूपीएससी पास, ऐसा है. क्योंकि अगर एंट्री पास ही नहीं मिलेगा तो तुम अंदर जाके क्या करोगे. तो वही है. तो प्रीलिम्स के लिए भी, और मेरा यही मंत्रा रहता है पूरे यूपीएससी के जर्नी में कि बैलेंसिंग का गेम सीख लो, मैनेजमेंट का गेम सीख लो. सो फॉर लाइक आई ऑलवेज से कि प्रीलिम्स के लिए ट्राई टू मैनेज जीएस एंड सीसेट, एंड फॉर मेंस you have to manage GS and optional, and for interview you have to manage your emotions, and this will work very well for you. This will make you clear the exam. अब प्रीलिम्स में जैसे मैंने बोला कि जीएस और सीसेट है, तो जीएस में बहुत सारे लोग ना, यही क्वेश्चन होता है पहले तो, व्हाट टू रीड, व्हाई टू रीड, हाउ टू रीड. व्हाट टू रीड में तो अभी मैं ऐसा ही बोलूंगा कि जैसे अगर कोचिंग ज्वाइन किया है तो स्टिक टू द कोचिंग नोट्स. अगर एक जगह से कर रहे हो तो प्रॉपरली करो. अगर ऐसा है ना कि मल्टीपल सोर्सेस में क्या होता है कि प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, तो अगर प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होगे तो उसमें क्या होगा कि यू विल वर्क बट कोई आउटपुट नहीं आएगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा. तुमको ऐसा लगेगा, यू विल फील, ऐसा एक अज्यूम करोगे अपने आप को कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत, और उसका कुछ आउटपुट है नहीं, उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं. तो प्रीलिम्स में जैसे तीन पार्ट रखते हैं अपन. बेसिक्स है,
फिर करंट अफेयर्स है, और उसके बाद एक सी सेट है। अब गलती कहाँ होती है कि करंट अफेयर्स को लोग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, कि दे ट्रीट करंट अफेयर्स एज अ सेपरेट थिंग। अब करंट अफेयर कभी सेपरेट थिंग हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट हैज सम रूट्स इन जीएस। क्योंकि कुछ भी होगा न्यूज में, उसका कहीं ना कहीं तो रूट होगा ही ना जीएस के सिलेबस में। अब प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो वो बहुत डिटेल्ड नहीं दिया है, तो यू हैव टू टेक क्यूज फ्रॉम मेंस सिलेबस। जो मेंस का आपका सिलेबस है ना, उससे क्यू लेना है, क्योंकि मेंस के सिलेबस में जो प्रीलिम्स का है वो बहुत सारा ओवरलैप होता है। अब इससे ऐसे, इसमें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में ऐसा ही लिखा है कि डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर उसके क्यू कहाँ से लेने हैं कि क्या डेवलपमेंट। तो मेंस में लिखा है ना स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां से क्यू लेना है। तो प्रीलिम्स में यही है, एक पोर्शन है, उसको जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि 50% से ज्यादा करंट अफेयर्स है, पर करंट अफेयर्स कैसे कर पाओगे अगर बेसिक्स ही नहीं पता। अगर तुमने न्यूज़पेपर में ऐसा रीड भी कर लिया आज कि ये सीएजी का कुछ रिपोर्ट है, और तुमको पता ही नहीं है कि सीएजी क्या है, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, जैसे मेरे अटेम्प्ट में 2024 में पॉलिटी में से जैसे क्वेश्चन आया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। अब जिसने करंट अफेयर देखा होगा तो वो कौन प्रेसिडेंट बना, कैसे बना, कौन बना, उस पर ही फोकस होगा, क्योंकि वही होगा तो द्रौपदी मुर्मू बने ये। बट फोकस हमको करना है स्टैटिक वाले पोर्शन में, कि व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, या फिर इम्पीचमेंट कैसे होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो मोर ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत फैक्चुअल में जाते हैं। करंट अफेयर में कैसा है कि इट इज डिफिकल्ट। कैसे अभी जो हम जो एज में रह रहे हैं, वो साइबर वाली एज में देर इज अ कंटेंट टेररिज्म। पहले डिफिकल्ट ये होता था कि कंटेंट मिलता नहीं था, अभी डिफिकल्ट ये है कि बहुत ज्यादा है। तो यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या रीड करे क्या नहीं। जैसे अभी करंट अफेयर के कंपाइलेशन देयर इज मल्टीपल कोचिंग्स, बट अगेन इसमें यही है कि चूज वन एंड स्टिक टू वन। अगर मैंने कुछ डिसाइड किया था तो मैं उसी पे स्टिक रहा, क्योंकि उसमें क्या है कि रिवाइज करने से जो कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा ना, वो तुमको नई नई चीजों में से नहीं मिलेगा। क्योंकि एक लैंग्वेज होती है, हर एक सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होगी, हर एक सब्जेक्ट में एक अपना फ्लो होता है। साइंस की एक लैंग्वेज है, वैसे पॉलिटी की एक लैंग्वेज है, और हिस्ट्री की एक लैंग्वेज है। अगर तुम उसको टाइम नहीं दोगे तो तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो पहले तो प्रीलिम्स में यही है, स्टिक टू स्टैटिक्स और बेसिक्स में। उसके बाद बेसिक्स में से ही यू विल रियलाइज कि उसमें से ही करंट अफेयर्स के क्यों लिए जाते हैं, और ऐसे प्रायोरिटाइज करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन पढ़ना है, प्रायोरिटाइज अपने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से। और सी सेट में यही है, सी सेट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अभी उसमें इतना मत घूमो कि कहाँ से करना कैसे करना, बस करने बैठ जाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है। और सी सेट में कैसा है कि सॉइल रेट ज्यादा होता है, कि मतलब तुमको रस्टिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं सोच सके कि मेरा जैसे 26 में अगर मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं सोच सका कि 25 के जून में मैं खत्म कर देता हूँ सी सेट। वो रस्टिंग हो जाएगा, भूल जाओगे तुम, मैथ्स तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जीएस का तुम मैनेज ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो, इस साल का नहीं, अगर ऐसा अज्यूम करे, तो अभी तो तुम मेंस का कुछ पढ़ोगे, ऑप्शनल का कुछ पढ़ोगे, उसके साथ तुम सी सेट कर लोगे, तो अभी ऐसा फील होगा कि आगे आगे। पर वो जब प्रीलिम्स में मोड में आओगे ना, तो ऐसा लगेगा कुछ याद ही नहीं है। तो वैसा ही रहता है। तो सी सेट में क्या है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस। और जैसे व्हाट वर्क फॉर मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सी सेट नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या चेंज किया, उससे आप कुछ सीख सकते हो। तो वो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत लाइटली ले लिया था सी सेट को। और ये मैं जेन्युइनली बता रहा, मेरे दोस्त ने बहुत बोला मेरे को कि मैं ये ले रहा हूँ, तू भी पढ़ ले मेरे साथ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ मैं। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क आए थे, मैं कर लूंगा। और उसके 90 आए सी सेट में, मेरे 63 पॉइंट समथिंग आए, तो रह गया। तो यही है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो चले जाओगे, बाहर ही कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए फिर सेकंड अटेम्प्ट में ऑफ कोर्स ये सेटबैक मिला था, तो सी सेट पे तो ध्यान जाने वाला था। तो व्हाट वर्क फॉर मी वाज, मैंने ऐसा किया कि प्रैक्टिस करने के लिए एवरी डे 2 to 4:30 या 2 to 5 जो बेस्ट पीरियड रहता है। क्योंकि तुम्हारा जो जीएस का तुम्हें टेस्ट भी देना हो ना, तो इसी टाइम में दो। जीएस के तुम सुबह 9 से 12 में दे दो, और सीसेट के 2 to 5 में दो। क्योंकि इससे क्या है कि मेंटल स्टिम्युलेशन होता है कि तुम रियल लाइफ में ऐसे ही टाइम में देने वाले हो। तो सीसेट में मैंने ऐसा किया कि 2 से 5 में मैं करता था 3 घंटे प्रिपरेशन। तो इसी में मैंने प्रैक्टिस कर दिया पीवाई क्यूज। और पीवाई क्यूज सीसेट में पीवाई क्यूज करना ही है,
उसके अलावा कुछ नहीं, बहुत रिपीट होते हैं। और उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन बहुत रिपीट होता है उसी सेट में, थीम्स भी है और सब। तो दिस विल वर्क फॉर यू। और उसमें भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि रीजनिंग वाला इजी पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला इजी पार्ट है, उसको पहले निपटाओ। क्वांटिटेटिव में ज्यादा नहीं हो पाता मैथ्स में हर बार। उसमें सिलेक्टिव पार्ट ले लो कि टाइम डिस्टेंस वाला है, कि कुछ इजी इजी हमको लगता है कि वर्क टाइम वर्क वाला है, वो सब उसको निपटा दो। बाकी जीएस में वन मोर थिंग फॉर प्रीलिम्स इज गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। और मेरा यही गोल रहता था कि रिवीजन के लिए टेस्ट से बढ़िया कुछ है नहीं। टेस्ट विल टेस्ट योर नॉलेज एज ऑल्सो, और आपको आपकी वीकनेस भी दिखाएगा, और उसमें इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस रहते हैं। क्योंकि हम किसी चीज को, जैसे पॉलिटी में कुछ हम लीनियर पढ़ते हैं पर उसका एनालिटिकल नहीं हो पाता, तो क्वेश्चन में क्या है कि जो टेस्ट सीरीज होती है वो बनाई इसलिए है कि किसी भी टॉपिक को तोड़ तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाते हैं कि तुमको ऐसा लगे कि मुझे आता भी है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, मेंटल स्टिमुलेशन, आपको एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और अगेन प्रीलिम्स के लिए दो मंत्र याद रखना चाहिए, सिलेक्शन और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दो है तो प्रीलिम्स हो जाएगा। सिलेक्शन यही है कि प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेंथ्स, और इमोशनल इंटेलिजेंस के एग्जाम डे के दिन इमोशंस को संभालना है, दैट विल बी गुड। क्योंकि फर्स्ट ये इस प्रीलिम्स में भी आई रिमेम्बर जीएस का पेपर मेरा खत्म हुआ था, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। तो मेरी बहन मेरे को लेने आई थी, तो मैंने उसको यही बोला था, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट आई एम गिविंग, आई एम डन विद दिस एग्जाम। बिकॉज मुझे लगा था कि अब नहीं होना। बट स्टिल मैंने अगर उस टाइम पे जो 2 घंटे में अपने इमोशंस को नहीं संभाला होता, तो वो स्पिल ओवर मेरा सी सेट में होता, तो सी सेट दूसरी बार भी गया होता। बट मैंने गैदर कर किया अपने आप को और सी सेट में आगे चला गया। नाउ कमिंग बैक टू मेंस। अब जैसे मेंस है तो दोनों का फ्लो अलग है। अभी प्रीलिम्स की डिमांड है कि क्वांटम ऑफ नॉलेज हो आपके पास, बहुत नॉलेज। नॉलेज यानी कि मैसिव आपको डेटा गैदर करना, इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एग्जैक्ट डिटेल्स की आपको लिखना नहीं है। बट मेंस की डिमांड थोड़ी अलग है, उसमें आपको थोड़ा एग्जैक्ट चाहिए, उसमें डेटा भी चाहिए, और उसमें आपको थोड़ा मेमोरी पावर भी चाहिए। और जैसे देखोगे प्रीलिम्स में तो यू कैन गेट सम टाइम, बट प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली 90 डेज होता है, 90 to 100 डेज। अभी उसके अंदर 7 पेपर को मैनेज करना है, जीएस के 4 पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, एक ऐसे का पेपर, इट बिकम्स टफ। आइडियल सिनारियो यही है कि अगर प्रीलिम्स के पहले तुम्हारे ऑप्शनल का 1.5 पेपर, 1.5 पेपर अगर ऑप्शनल का खत्म होता है, दिस इज आइडियल सिनारियो आई एम टॉकिंग। या फिर बेटर सिनारियो ये होगा कि एक पेपर कर दो ऑप्शनल का और 2 जीएस के पेपर। ये अपना आइडियल सिनारियो होना चाहिए कि दिस विल सेव योर वर्क। क्योंकि नेक्स्ट जब मेंस आएगा तो यू हैव टू फोकस ऑन, जो मेंस का गेम है ना वो 3 पेपर पे ही है, ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, यही है। अगर इस 3 में अगर ठीक से कर लिया ना, तो यू हैव सेल्ड थ्रू। अभी ऐसे में अगर तुमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया, तो फिर इसमें ऐसा होगा कि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3 महीने में तुमको टेस्ट सीरीज भी देना है, पढ़ना भी है, डेटा भी गैदर करना है, और उसके बाद इवेल्युएट भी करना है खुद को। और सबका थीम अलग है, ऐसे में तुम्हारी डिमांड अलग है, ऐसे में लेंथी आंसर्स लिखने हैं, जीएस में तुमको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं कि 10 मार्कर्स है, 15 मार्कर्स है। ऑप्शनल में अगेन देर इज अ डिफरेंट फ्लो। जैसे मेरा पीएसआईआर है, तो ऑप्शनल में मैं कभी पॉइंट वाइज नहीं लिख सकता, इट इज अ थियोरेटिकल पेपर, तो मेरे को थियोरी की जैसे ही लिखना पड़ता है। और जीएस में है तो जीएस में पॉइंटर्स है, उसमें भी जीएस 4 में यू हैव टू थियरी नॉलेज चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव नॉलेज चाहिए। तो मेंस के लिए यही कर सकते हैं कि सिलेबस को डिवाइड करना, उसको प्रायोरिटाइज करना, और मेंस के 90 डेज में 50% टाइम आपको ऑप्शनल को देना पड़ेगा। दिस यूज टू बी व्हाट माय टाइम टेबल वाज, कि 4 घंटे जीएस को, 4 घंटे मैं ऑप्शनल को देता था। ये मेरा। और मैं थोड़ा जेन्युइनली बता दूं, मैंने आंसर राइटिंग नहीं की प्रीलिम्स के पहले। वॉट एवर आई डिड आफ्टर माई प्रीलिम्स। मेरे मेरा यही था कि प्रीलिम्स के बाद मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के पहले मैं आई यूज टू डू जॉब। मेरे को जॉब करनी थी, मैंने जॉब छोड़ी थी मार्च में, तो आई हैड हार्डली 50 डेज फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था ये आंसर राइटिंग और वो सब के लिए। तो मैंने यही डिवाइस किया था कि अभी मैं मेंस के बाद करूंगा, ये प्रीलिम्स के बाद कर लूंगा। तो यही है कि उसके लिए मैंने किया था कि 4 आवर्स अपने जीएस के देते हैं, और जीएस में भी 2 पेपर पकड़ लेता था मैं, ये दिन के 2 जीएस के पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर, यही पढ़ रोज फॉर 90 डेज, एंड दिस यूज टू वर्क फॉर मी। और जगह जैसे ऑप्शनल है तो
ऑप्शनल में दे आर डिमांडिंग ग्रेजुएशन लेवल की आपकी एक्सपर्टीज हो तो। और ऑप्शनल में ऐसा है ना कि जैसे देखो जीएस के मार्क्स तुम देखोगे मोर और लेस सबके सेम आते हैं, 90 टू 110, यही एवरेज है। कोई भी टॉपर उठा लो या फिर आप 600 रैंक वाले को भी देख लोगे तो 90 टू 100 105, उसमें एज नहीं मिलती ज्यादा जीएस में। जहाँ पे एज मिलती है वो यही है, ऐसे और ऑप्शनल में ही है। 250 मार्क्स के पेपर में यू कैन गेट 150 ऑल्सो, यही लोग एक्स्ट्रा एज मिलते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैं तो जिसको आइडल मानता था स्वाति शर्मा करके थे पीएसआर में, उनके 300 प्लस आए थे, तो उन्होंने दोनों पेपर में 150 प्लस स्कोर किए थे। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 150 प्लस इन एनी जीएस पेपर, बट ऑप्शनल विल गिव यू दिस एज, क्योंकि ऑप्शनल में आपको एक चांस है। ऑप्शनल में आप 150 प्लस भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं ऐसा। और ऐसे में भी ऐसा है कि शूट हो गया तो यू कैन गेट 130 140, बाकी जीएस की रेंज वही रहती है 400 के आसपास। तो यही है, अपने को ऑप्शनल को 50% ज्यादा, 50% से ज्यादा या 50% तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। और अभी जैसे 25 20 आपको अभी 25 का जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए यही है कि अभी ऑप्शनल छोड़ देना, अभी तो प्रीलिम्स पे ध्यान देना, बट आफ्टर द प्रीलिम्स जो भी, तो आप ऑप्शनल पे पूरा फोकस करना। और ऑप्शनल और ऐसे को कभी लाइटली मत लेना, अगर इसको लाइटली ले लिया तो आप रेस से बाहर हो पहले से ही। और माइंडसेट ऐसा ही रखना कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि वॉइसेस ऐसे आते हैं कि प्रीलिम्स हो गया ना फिर भी लोग बोलेंगे कि यार नहीं होगा, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, इतना सिलेबस बढ़िया, बहुत हेक्टिक होता है सिलेबस, बहुत ज्यादा बड़ा भी है। मतलब टू गिव यू मतलब ऐसा कैसे अंडरस्टैंड करवाना है, तो ऐसा समझो कि जीएस के पेपर और ऑप्शनल के पेपर के बीच में 4 दिन होते हैं ये मेन एग्जाम में। अब 4 दिन में मैंने 5,500 से 6,000 पेज पढ़े थे। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ नॉलेज और दिस इज द अमाउंट ऑफ पेजेस यू हैव टू रीड। अगर ये, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ऐसे भी इतना क्वांटम ऑफ नॉलेज दे डिमांड, और ये 6,000 पेज अगर पढ़े हैं तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़े हैं, याद भी रहने चाहिए। तो यही है मेरे ऑप्शनल में, तो यही गेम था, क्योंकि ये बहुत लेंथी ऑप्शनल था। अब जिसका सबका अलग अलग होगा तो अकॉर्डिंगली मैं यूनिवर्सल तो यही बोल सकता हूँ कि ऑप्शनल आपको एज देगा, ऑप्शनल को ज्यादा से ज्यादा आपको देना है। और पीएसआर के लिए पर्टिकुलरली यही बोलूंगा कि पीएसआर के ऑप्शनल में ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज पे ऊपर आपका कमांड होगा तो यू कैन सेल थ्रू। और ये लैंग्वेज ही है, पीएसआर में तो लैंग्वेज ही काम करेगी। अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स आ गए और उसको रेगुलर लाइफ में यूज करना आ गया तो आपके ऑप्शनल में आपको कोई हरा नहीं सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 2 टेस्ट पेपर दिए हैं पीएसआर इस बार, ओनली 2 पेपर्स, बिकॉज और दोनों पेपर में आप मेरे मार्क्स देखोगे इट वाज ओनली 60, बट आई न्यू कि मेरे में है पोटेंशियल, तो मेरे सोचा कि यार ये टी सीरीज हटाओ, अब मैं मेरे तरीके से करूंगा। मैंने ऑप्शनल के पेपर ऐसे ही दिए कि मैं कॉलेज का एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में मैं मेरा गोल्ड मेडल आया था पॉलिटिकल साइंस में। बिकॉज अल्टीमेटली मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे आंसर्स में बहुत ओरिजिनल रखता था, कि थोड़ा हटके, थोड़ा क्रिएटिव, ऐसा नहीं कि छाप दिया वही जो है पुराना। तो मैं थोड़ा ओरिजिनल रखता था, अपनी तरीके से लिखने का ट्राई करता। और मुझे लगा ही था, जब मैंने अपने को इंट्यूशन आ जाता है जब अपन लिखते हैं, तो मेरे को लगा कि रिवॉर्ड मेरे को 2 पेपर तो देने वाले हैं, ऑप्शनल और ऐसे। तो यही है, ऑप्शनल में एक लैंग्वेज और उसका लैंग्वेज पे कमांड और उसकी वोकेबलरी जो डिक्शनरी होती है, हर एक ऑप्शनल की एक डिक्शनरी बनाओ तो आपके लिए आसान हो जाएगी जिंदगी, यही है। और बाकी ऐसे के लिए सबसे अच्छी एडवाइस यही होगी, फॉलो टॉपर्स कॉपी, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे के लिए ओनली वन थिंग, मैंने ऐसे के लिए और कुछ नहीं किया, आई हैव डन टॉपर्स कॉपी, बहुत अच्छे लिखते हैं। ऐसा है ना कि टॉपर्स ने बहुत मेहनत करके बहुत फिल्टर्ड आउट कंटेंट अपने आंसर्स में लिखते हैं, तो टॉपर्स कॉपी से ज्यादा आपको वैल्यू एडिशन कहीं नहीं मिलता। हाँ, आप नोट्स बनाने चाहते हैं तो जैसे थीम वाइज है कि वुमेन के ऊपर आपने कुछ कोट्स ले लिए, या फिर कोई इंडस्ट्री के लिए, या फिर कोई गांधी जी का कोई कोट ले लिया, पावर के ऊपर कोई कोट ले लिया। ऐसे यूनिवर्सल थीम्स रहते हैं कि जैसे मेरा ऐसे में यही रहता था कि मैं हमेशा एंड एक पोएम से करता था और स्टार्टिंग एक एनेक्डोट से करता था। कि स्टार्टिंग अगर एनेक्डोट से करोगे तो इट विल फील मोर, थोड़ा फिल्मी बनाओ, उसमें डायलॉग बाजी करनी है तुमको। ऐसे में वो दे आर डिमांडिंग कि तुम अपना वोकेबलरी दिखाओ, क्योंकि ऐसे इज टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन कि तुम कितना अच्छा लिख सकते हो, कितना अच्छा बोल सकते हो। तो थोड़ा फ्लावरी बनाओ, फ्लावरी लैंग्वेज। तो एनेक्डोट से स्टार्ट करता था और फिर उसके बाद
5 क्वेश्चंस वही व्हाई व्हाट हाउ, उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको प्लान करता था। और अल्टीमेटली यही करना है कि तुमको यूनिवर्स ऐसा पिरामिड बनाना है कि पहले पर्टिकुलर से स्टार्ट करो और उसको यूनिवर्सल तक लेके जाओ। जैसे वुमन का कुछ स्पेसिफिक आया तो पहले पर्टिकुलर से स्टार्ट करो, कि जैसे वुमन इन रूरल एरिया, तो पहले रूरल एरिया से पर्टिकुलर स्टार्ट करो। बट अल्टीमेटली अपन को लेके जाना है वर्ल्ड के वुमन में, सारे वुमन। अल्टीमेटली अपन को लेके जाना है वुमन एम्पावरमेंट। सो दैट इज हाउ। और वुमन एम्पावरमेंट जैसा है तो मैं लास्ट में ऐसा ही पोएम लिखूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर का, कि लेट माय नेशन अवेक इनटू सच हेवन, जहाँ पे वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। या फिर मैं उपनिषद के श्लोक्स लिख देता था, क्योंकि मेरे को पहले से ही संस्कृत का बहुत शौक है, तो मैं श्लोक्स, तो ये सब इम्प्रेस करता है, ये थोड़ा ओरिजिनलिटी दिखाता है। अब जैसे हमारी कल्चर है, हमारी कल्चर को अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हर बार इंग्लिश इंग्लिश करोगे कि ये इसने ये बोला, मार्टिन ल्यूथर जूनियर ने, हमारे इंडिया में भी है बहुत सारे, उपनिषद का कुछ कोट करो, गीता का कुछ कोट करो, बहुत ओरिजिनल लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। वसुधैव कुटुंबकम कहीं लिख दिया, अच्छा लगता है। G20 वाले समिट था तो इससे मैंने भी लिखा था कि वसुधैव कुटुंबकम का। तो ऐसे में यही करो कि टॉपर्स कॉपी को देखो, एनालाइज करो, और उसमें से टॉपर्स कॉपी में से कुछ वैल्यू एडिशन लेना। हर एक टॉपर अपनी अपनी बुक्स या कुछ उसमें लिखता है। तो मैंने जैसे ऑल इंडिया रैंक 15 था मेरे वहाँ लास्ट ईयर, उसका भी PS आया था, कुणाल रस्तोगी। उसके उसने 24 एसेज लिखे थे टेस्ट सीरीज। तो 24 एसेज में से मेरे को 24 वैल्यू एडिशन मिल गया था। तो वो कहीं से बुक का कुछ लिखता था, जैसे मिल्खा सिंह की कुछ बुक का लिख लिया, या फिर सेपियंस बुक का कुछ, युval नोआ हरारी का कुछ लिखा था। तो वैसा तुमको रेडीमेड मिल जाएगा। एंड दिस टॉपर्स कॉपी, दिस विल वर्क फॉर GS पेपर्स एज वेल। और GS पेपर में सारे, अगर रिवीजन कहीं तुमको लगता है कि बोर हो रहा है, तो रीड टॉपर्स कॉपी। वो आपका रिवीजन प्लस वैल्यू एडिशन होगा। वो बहुत फिल्टर्ड आउट कंटेंट रहता है। जैसे समझो कि मैंने कोई टॉपिक NGO का पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ तो 10-15 पेज पढ़ रहा हूँ, या 20 पेज पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को अगर आंसर लिखना है तो मैं 2 पेज का लिखूंगा, तो मैं 15 पेज को कंप्रेस करूंगा, फिल्टर आउट करूंगा और बेस्ट पॉइंट्स लिखूंगा। तो टॉपर्स विल डू द सेम। तो GS के जो टॉपर्स कॉपी होती है उसमें फिल्टर्ड आउट, कंप्रेस्ड, वैल्यू एडेड कंटेंट होता है, दैट कैन मेक योर ग्रेट नोट्स टॉपिक वाइज। जैसे बहुत सारे कंपाइलेशंस मिलते हैं कि जिसमें टॉपर्स का कंपाइलेशन मिलता है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के, दैट विल वर्क अ लॉट, उसमें आपको एज भी मिलेगा। तो यही है, ऐसे का देख लो ये सब। और GS में है, यू कैन यूज टॉपर्स कॉपी, और स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही, बट ट्राई टू वैल्यू एड, कि थोड़ा कीवर्ड्स को याद रखना चाहिए। मेंस में है ना कि अगेन वोकेबलरी वर्क्स अ लॉट। जैसे मुझे कुछ बोलना आता है, मेरे पास नॉलेज है, बट मेरे को लिखना अच्छे से नहीं आता। आई हैव टू राइट समथिंग गुड। जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, देर इज नीड ऑफ बिग रिफॉर्म, ऐसा नहीं लिखना। ऐसा लिखते हैं कि देर इज नीड ऑफ बिग टिकट रिफॉर्म्स, ऐसा लिखते हैं। या फिर जैसे कोई इंडिया रिलेशन है किसी के साथ, तो ऐसा सिंपल नहीं लिखने का कि बहुत अच्छे होने वाले रिलेशन। हम ऐसा लिखते थे कि जैसे मेरा तो PSR है कि जैसे अफगानिस्तान का कुछ आ गया फॉर एग्जांपल, तो हम लिखते हैं कि इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन कैन बी डिस्क्राइब इनटू 4C: कल्चर, कोअलिशन, कोऑपरेशन, और वो कोई भी C डाल दो फिर, ठीक है। कल्चर, कोअलिशन, कोऑपरेशन, ऐसा 4C की तरफ। या फिर कोई अच्छा कोट है तो वो डाल दिया, डेफिनेशन है डाल दिया। तो दिस विल हेल्प। GS2 में पॉलिटी में यूज आर्टिकल्स, GS2 में जो रेडीमेड आर्टिकल्स होते हैं वो अच्छा रहेगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि GS2 में ज्यादा वैल्यू एडिशन हर बार नहीं हो पाता। तो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन है उसको थोड़ा रट्टा मारने का है, तो वो हो जाएगा। और IR में अगेन यही थीम को रिपीट करना है कि थोड़ा फ्लावरी दिखाना है, क्योंकि सबको पता है ये, बट वी विल राइट समथिंग के जो अपना एज दे दे। तो मेंस का यही रहता है कि कम थोड़ा टाइम कंप्रेस्ड है। तो इसमें यही है, टेस्ट दो, बट टेस्ट को दिमाग में मत डालना। अगर मार्क्स आते हैं कि तुम समझो कि मेरे टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स ही नहीं आते थे, तो टेस्ट सीरीज वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट सीरीज मेरे मार्क्स नहीं आते। प्रीलिम्स में यही होगा, मेंस में भी ऐसा होगा। मेंस में ज्यादा ऐसा होता है कि सब्जेक्टिव बहुत है, कि हर एक आदमी अलग अलग तरीके से चेक करेगा। तो मेंस में मेरे जो टेस्ट सीरीज थे, मेरे GS के कोई पेपर में 80-90 से बड़ा ही नहीं आया था मार्क्स। पर मेरे को इतना पता था कि वो सामने वाला जो चेक करने वाला है उसका तो हुआ नहीं है, तो ठीक है,
मैं अपना ओरिजिनल रखूंगा, वैल्यूएडिशन करूंगा। अब जो चेक करने वाला था वो अभी भी चेक ही कर रहा है, तो मेरा हो गया है। क्योंकि मैंने अगर दिमाग पे रख दिया होता, मैं भी चेक ही कर रहा होता, अभी तो टॉपर्सकोपी चेक कर रहा होता कि भाई तेरा ये हो गया, तेरा ये हो गया। तो ओरिजिनल रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि इसमें क्या है कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा है ना कि दैट विल मेक यू डिप्रेस्ड। बहुत हेक्टिक है, अप डाउन्स बहुत रहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं था ना, तो आई वाज फीलिंग कि अब दुनिया खत्म है। अगर उस टाइम पे दुनिया खत्म हो गई होती तो सेकंड अटेम्प्ट ही नहीं दिया होगा। तो इसमें क्या है कि ये सब तो चलो नॉर्मल थिंग है, बट कीप योर हेड कूल, माइंडसेट थोड़ा क्लियर रखो, थोड़ा बड़ा गोल अपने दिमाग में रखो। क्योंकि ये ना क्या है कि दो पार्ट में कर सकते हो, इजी इजी भी कर सकते हो, या फिर अपनी लाइफ टफ भी बना सकते हो। ज्यादा सोच के ओवर थिंकिंग मत करो। जो करना है, जब भी लगे कि ओवर थिंकिंग करना, बैठ जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो आएगा। वही है। और ट्रस्ट योर वट एवर नोट्स यू आर गेटिंग, वट एवर क्लासेस यू आर गेटिंग, ट्रस्ट देम। 100% ट्रस्ट दे दो, फेथ करो। अपने फेथ होनी चाहिए जिससे भी पढ़े, डाउट मत करो। क्योंकि देखो तुमसे तो ज्यादा ही आता होगा जो भी तुम्हें पढ़ाने आना। तो देखो, रिस्पेक्ट देम। तो उनसे जो भी सीखने को मिले, जहां से भी नॉलेज सीखने को मिले, उसको गैदर करो, उसको फिल्टर आउट करो, प्रायोरिटाइज करो, और उसके बाद आउटपुट दो। और वही है, रीड रिवाइज रिपीट, वही वाला चलेगा। और बैलेंस करो मैनेजमेंट, एज आई सेड, मैनेज योर जीएस एंड सीसेट इन प्रीलिम्स, मैनेज योर जीएस एंड ऑप्शनल इन मेंस, एंड मैनेज योर इमोशंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, एंड दिस विल वर्क वेल फॉर एवरीवन, राइट। मगअप करने का थोड़ा कम रखना, थोड़ा एनालिटिकल भी सोचता रहना, क्योंकि हर बार मगअप से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल आंसर्स भी चाहिए। तो दिस विल वर्क फॉर यू। नाउ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और यू कैन आस्क। जैसे आपने बताया कि आप जॉब करते थे, फिर आपने प्रीलिम्स के टाइम पे जॉब छोड़ दिया। यस तो यस। जॉब जो वर्किंग प्रोफेशन में है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें वाइल प्रिपरेशन? मतलब अगर जॉब कर रहे हो और आपको प्रिपरेशन करना है, वो बोल रहे हो ना। हाँ। अब हाँ। जैसे जॉब का मेरा यही था कि आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, बट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो आई मेरे को वापस आना पड़ा। तो नाउ मेरे को इतना पता था कि मैं कभी ना कभी तो क्रैक करूंगा, तो मेरे को वापस जाना था, तो आई हैड टू प्रिपेयर। मेरे को थोड़ा अमाउंट चाहिए था, 50-60 थाउजेंड, तो आई यूज्ड टू वर्क। तो 3 महीने मैंने, दिसंबर से फरवरी तक 3-4 महीने मैंने जॉब की थी एज अ काउंसलर। तो आई यूज्ड टू मैनेज, लाइक मेरा सुबह 6 बजे जाता था और 4 बजे तक मेरा जॉब रहता था। और जॉब ऐसा कि शटर भी मुझे ही खोलना है, पानी चेंज करना है, पेपर्स को अरेंज करना है, ये सब करता था। पर मेरे को पता था कि वहां पे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तो आई यूज्ड टू पुल आउट सम आवर्स देयर। वहां पे पेपर आता था तो पेपर पढ़ लेता था मैं तो 1 घंटे। तो ये वर्क, ये जैसे लोकल कोचिंग सेंटर था, वहीं पे मैं करता था। तो 2-3 घंटे वहां पे पुल आउट कर लेता था। और उसके बाद जैसे, अब ऑब्वियसली जॉब करोगे तो आपको फिजिकल फटीग रहेगा, मेंटली आप इतने एक्टिव नहीं रह पाते आफ्टर 5-6। तो उसमें यही करना चाहिए कि जो इजी पॉइंट्स है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स, उसको पकड़ो, इजी सब्जेक्ट्स को पकड़ो। इस जॉब में जैसे मैंने क्या किया कि जो रट्टा मारने वाले हैं ना, उसको पकड़ता था मैं। तो हिस्ट्री का जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, या फिर रात को पॉलिटी का पढ़ लिया, जिसमें बार बार रिवाइज करना है, या फिर मैपिंग कर लिया। ज्योग्राफी इज अ गुड सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा मेंटल आपको एप्लीकेशन नहीं देना चाहिए, मतलब उसमें देना पड़ता भी नहीं है। बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इजी टू रिमेम्बर है। तो मैं ना मैपिंग बहुत करता था। मैपिंग करते था, नेशनल पार्क रट लिए, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ देख लिया, कुछ स्पीसीज का देख लिया, बायोम्स पढ़ लिए। वैसे पॉलिटी में जैसे एक एक सेक्शन हर बार, हर दिन थोड़ा देख लिया कि जैसे चलो इस बार एग्जीक्यूटिव का थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया। हिस्ट्री में जैसे एक दिन मैं करता था कि आज रिवोल्ट्स पढ़ लेता हूँ, कल मैं ऐसा करूंगा 1857 वाला सब पढ़ लूंगा, फिर सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ लूंगा। तो इसमें क्या है कि जॉब में हर बार पॉसिबल नहीं होगा 100% देना। तो यू हैव टू पिक लो हैंगिंग फ्रूट्स, कि जहाँ आपको अच्छा एज मिल सकेगा विथ लेस एफर्ट्स। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिलेबस में आप अगर फोकस करोगे ना, ऐसे बहुत सारे हैं कि जहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको थकान वकान हो तो फिर रात को ऐसे सब्जेक्ट पकड़ो कि जहाँ पे आपको इजी हो, जहाँ मन लगता है वो पढ़ लो। और इट वुड बी ग्रेट कि अगर प्रीलिम्स के पहले आप जॉब छोड़ सको,
क्योंकि ना फुल टाइम प्रिपरेशन तो मांगेगी ये, बिकॉज यू नीड टू स्टडी 10-12 आवर्स बिफोर प्रीलिम्स, and even more one month before the prelims you have to put more hours. 14 hours भी चले जाते थे, 15 hours भी चले जाते थे। तो डिमांड तो है, बट अगर उसके पहले पहले कर रहे हो तो यू कैन पिक दिस। या फिर कुछ ऑडियो बुक्स है, कुछ ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, उसको कान में लगाए रखो। मैं ऐसा करता था कि मेरे डेस्क के नीचे मैं फोन रखता था और कान में एक हेडफोन डाल देता था, ऐसे पढ़ लिया किसी का एडमिशन हो गया। तो दिस हैज वर्क फॉर मी। मैंने ज्यादा जॉब नहीं किया, 3-4 महीने किया है, बट यही किया है कि जो लो हैंगिंग है, जो मेरे को रिवाइज करना है, जो मेरे को आता है ना, वो रिवाइज कर लेते, दैट विल वर्क। Hello, sir. यस, हेलो। Uh, as you said, you were your school education from vernacular medium is Gujarati language. यस, So you opted for UPSC to attempt in English language. So did you face any problem and vocabulary related and all? यस ब्रदर, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। मेरे को चेंज करना पड़ा इसीलिए था क्योंकि स्कूल नहीं था गुजराती मीडियम में आर्ट्स का। द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट। तो इसीलिए मैंने मीडियम चेंज किया। और यस, ये प्रॉब्लम बहुत आएगा। 2 साल मैंने बहुत रट्टा मारा है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, अगर आप मीडियम में पढ़ते हो तो इट इज ट्रीटेड कि इंग्लिश को आप रट सकते हो, आपको रटना सिखाते इंग्लिश को। तो मेरे तो गुजराती मीडियम में यही सिखाते थे कि रटो, इंग्लिश को रटो। वही V1 V2 V3 करवाते थे, है वाला, इज एम आर, वही आता था बस। तो मैंने 2 साल अब गुजराती मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम लिया और पहली बुक एनसीईआरटी उठा ली मैंने, वो भी 10th की। मुझे लगा मैं भी 10th पास किया है तो 10th का तो आ ही जाएगा। तो 10th का पहला ही पेज खोला और वर्ड सुना मैंने, रिनेसॉन्स, या मेरे को तो अभी तक वो आता भी नहीं है बोलना। तो वो पहला ही वर्ड आया। अब मैंने बोला ये क्या है भाई, दिमाग का दही हो गया था। मैंने 2 पेज पढ़े, मेरे को 2 पेज 3 पेज पढ़ने में 2 घंटे लगे थे, क्योंकि इतने टफ वर्ड्स हैं। तो यस, वोकेबलरी का रहता है, तो उसके लिए यही करना है कि 3 अपने सेंसेस है उसको अच्छे से यूज करो। पहले तो अच्छा सुनो, इंग्लिश में सुनो। एक तो इंग्लिश में पढ़ो न्यूज़पेपर, और इंग्लिश में बोलो। और ये लास्ट वाला है ना, वही हेल्प करेगा। इंग्लिश में बोलो, नहीं आता फिर भी बोलो। अगर मीडियम चेंज किया है या मीडियम में देना चाहते हो इंग्लिश में, क्योंकि इसमें क्या है कि रट तो सकते हैं, बट किसी चीज को अगर नेचुरल है, जैसे अपना वर्नाक्युलर वाला होगा, जैसे तुम्हारा मराठी होगा या मेरा गुजराती, तो मैं कितना भी इंग्लिश पढ़ लूँ, मेरा जो थिंकिंग का लैंग्वेज है ना, वो गुजराती रहेगा, वो मेरे नेचुरल है। अभी भी मेरे को एक स्टेप आता ही है कि पहले सोचूंगा गुजराती में, उसके बाद मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तो एक स्टेप आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल बनना पड़ेगा। उसके लिए बोलो या बात करो, कन्वर्सेशन करो, तो दैट विल हेल्प। और न्यूज़पेपर, उससे ना थोड़े थोड़े मैं ऐसा करता था स्टार्टिंग में। एक लोकल मैंने एसएससी का कोचिंग किया था। वो लोग ना हर रोज 5 वर्ड सिखवाते थे, ये सीखो। तो वो 5 का रट्टा मार लेता था और 5 को रोज यूज कर लेता था। वो अभी भी मेरे को याद है कि जैसे चोरी करना है ना, उसको पिल्फर बोलते थे। तो मैं मेरे दोस्त को बोलता था कि यू पिल्फर्ड माय नोट्स, मैं रोज बोल देता था। तो यही है, बोलते रहोगे तो इट विल हेल्प योर वोकेबलरी। यस, हेलो। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने प्री के बाद आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, यस। तो प्री के बाद जैसे कि मेंस में टाइम नहीं मिलता, मतलब इतना प्री और मेंस के बीच में, हम्म। तो आपने आंसर राइटिंग, ऐसे और ऑप्शनल का मतलब मैनेज कैसे किया तीनों एक साथ? वो क्या है, प्रेशर आएगा ना जब, तब सब हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं भी बहुत बहुत पूछता था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज होगा। जब ना प्रेशर आता है ना दिमाग पे कि यार 90 डेज है, तो सब हो जाता है। ऐसा हो जाता है। मेरे सीनियर है, आईपीएस है, वो बोलते थे कि ये 90 दिन में तुम इतना पढ़ोगे ना जितना लोग लाइफ टाइम में नहीं पढ़ते। तो यू विल बी, मतलब हम ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे ह्यूमन माइंड को। बहुत पॉसिबल है। पहले तो यही निकाल दो कि ये मैनेज नहीं होगा, मैनेज हो जाता है। और मैनेज करवा देता है भगवान भाई, अगर फेथ है तो। नहीं है तो भी रखो अभी, क्योंकि यूपीएससी में फेथ तो चाहिए। तो मैनेज तो हो जाएगा। देखो अब मेरे को भी पता नहीं था प्रीलिम्स के पहले कि
क्या करना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जस्ट जो आता है उठा लिया। अभी GS1 उठाया तो GS1 खत्म कर दिया, GS2 खत्म कर दिया। और मैंने बोला 50% टाइम ऑप्शनल को। इतना पता था मेरे को, ज्यादा डिटेल में नहीं पता। बस इतना पता था कि ऑप्शनल का वेटेज रहता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल को संभालना है, बाकी देखा जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में यही है। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने 10 टेस्ट लिखे हैं GS के, 2 टेस्ट लिखे ऑप्शनल के, और 3 टेस्ट लिखे एसए के। दिस हैज वर्क फॉर मी। अब इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए आंसर राइटिंग नेचुरल था पहले से, और मेरा ह्यूमैनिटीज था और मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा। दिस विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन, बट मेरे लिए ये वर्क किया था। और ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए भी वर्क करता है। वो 3 महीने में कंप्रेस हो जाता है सब। तो वो हो जाएगा, आप चिंता मत करो। आप बस प्रीलिम्स की एक बार क्रॉस करो, सब नेचुरली हो जाएगा। Good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग। So the mains exam is a very lengthy process and continuous process of 5 days. So in between the days, what was your strategy to revise the topics effectively? And my second question is, what was your experience of the interview? ये मेंस में क्या है कि बात सही है। 5 दिन में ना तुम्हारा पूरा एनर्जी निकल जाएगा, तुमको ना भगवान दिख जाएंगे। 2 दिन में नहीं दिख जाएंगे कि, क्योंकि इसमें क्या है, 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, GS1-2 फिर GS2-3। तो सबसे डिफिकल्ट जो नाइट रहती है ना, वो GS1-2 का पेपर खत्म हुआ ना, वो वाली रात सबसे डिफिकल्ट होती है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग पे ऑलरेडी लोड है कि GS1-2 के अच्छे नहीं गए, तो तुमको लगेगा ही हमेशा कि अच्छे नहीं गया पेपर। तो उसका लोड होगा, प्लस प्रेशर होगा अगले दिन का कि GS3-4 है, उसमें क्या करूंगा। तो ये जो रात है कोई नहीं सोता, कोई सो भी नहीं सकता। तो रिवीजन का ऐसा है ना कि पहले तो ट्राई करो कि सारा रिवीजन पहले खत्म हो जाए, क्योंकि इन बिटवीन ज्यादा टाइम नहीं मिलता। जैसे 2 पेपर के बीच में हार्डली 2 घंटे मिलते हैं, 2 या ढाई घंटे। क्योंकि जैसे 2:30 बजे का पेपर होगा ना, तो 1:30 बजे से अंदर बुलाना चालू कर देंगे। और 12 बजे तो खत्म हुआ है अभी पेपर। तो 12 बजे खत्म होता है तो यू विल हैव लंच, थोड़ा बैठोगे, थोड़ा प्रेशर भी होगा कि आगे का पेपर में क्या लिखा है क्या नहीं। तो हार्डली 1-1.5 घंटा होता है, तो उसमें रिवाइज इतना ज्यादा नहीं हो पाता। क्या रिवीजन कर सकते हैं तो यही है, थोड़ा शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे डेटा का, थोड़ा डेटा हो गया, या फिर अगर न्यूमोनिक्स से पढ़ना आता है तो न्यूमोनिक्स बनाए है तो वही रिवाइज हो पाएगा। ज्यादा रिवाइज नहीं होता। GS1 में शायद हो जाता है, क्योंकि ऐसे के बाद थोड़ा पूरा दिन मिलता है। ऐसे का पेपर एक उसके दिन सिर्फ ऐसे का पेपर होता है, उसके बाद फ्री हो दो। तो GS1 में एक तो रिवीजन हो जाएगा, और बस GS1 में ही रिवीजन होगा, उसके बाद सिर्फ ऑप्शनल। बाकी के तुम्हें ना डेटा ही है, डेटा, या फिर GS3 में डेटा है, GS4 में तुम थिंकर्स को याद कर सकते हो, या फिर थोड़े अप्रोचेस को याद कर सकते हो। बस यही शॉर्ट नोट्स वाले हैं, कीवर्ड याद कर सकते हो। ज्यादा तुमको टाइम नहीं मिलेगा GS में, बहुत हेक्टिक रहता है। इसलिए ट्राई ऐसा ही करना चाहिए कि पहले खत्म हो जाए रिवीजन। और ये ना गेम थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी रहता है, तुम कॉन्फिडेंट रहो, ज्यादा मत सोचो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो फिर नेगेटिव रहोगे। जस्ट ट्राई कि मेरे को ना दूसरों से अच्छा लिखना है, समझे। खराब लिखा है कुछ नहीं, दूसरों से अच्छा लिखना है, दैट्स इट। कंपटीशन में एक सीट चाहिए ना, एक सीट चाहिए तो मतलब बाकी के सीट वालों से अच्छा लिखना है, तो दैट विल हेल्प यू। तो यही माइंडसेट रखना है। एवरेज एवरेज लिख के भी लोग पास हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में यू कैन नॉट गिव योर 100%। तो मेंस में यही करना है अपने को। 3 महीने में पूरा फोकस यही है, टेस्ट है, रिवीजन है सब, और एक वीक के पहले फुल रिवीजन मोड में आ जाना है। और डिवाइड करो टाइम टेबल अच्छे से, क्योंकि पूरा प्रायोरिटाइज नहीं करोगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो यही है। और इंटरव्यू का तो मेरा देखो फर्स्ट वीक में ही था इंटरव्यू। द इंटरव्यूज बिगेन ऑन 7 जनवरी, और मेरा इंटरव्यू था 15 जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगा नहीं था मेरा मेंस होगा, क्योंकि मैं बहुत, और जेन्युइनली मैंने क्लास 3 का एग्जाम दिया था हेड क्लर्क के लिए। तो बोला अब हो गया अपना, क्लर्क बन जाएंगे, ठीक है, कोई नौकरी मिल जाएगी, बहुत है। मेंस हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद थोड़ा एक वीक तो ऐसे ही चला जाता है डेफ भरने में और वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो 20 दिसंबर को आया था डेट्स और वो सब। टेक्निकली मेरे पास 20 दिन थे, 25 डेज, 20 से 25 दिन थे मेरे को प्रिपेयर करने के लिए इंटरव्यू के। उसमें मेरे को मॉक भी देना था, डेफ भी प्रिपेयर करना था।
और इंटरव्यू मेरा थोड़ा बाउंसर गया था। जनरली मेरे को यही पूछते हैं तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। मेरा नाम स्मिथ है, गुजराती है ना, तो इसका मतलब स्माइल होता है, टू स्माइल। तो जनरली वो कंफ्यूज करते हैं स्मिथ के साथ। दैट इज अ सरनेम, बहुत फेमस है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि या फिर नाम पे पूछेंगे या फिर मेरे कॉलेज पे, बैकग्राउंड पे। अब मेरे में ऐसा हुआ कि मैं गया, आई वॉज फर्स्ट टू गो। सुबह 10 बजे पहला मेरा ही था। फर्स्ट टू गो, बैठा, गुड मॉर्निंग बोला। सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था मेरा। और जैसा बैठा, मैम ने बोला व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी, टेल मी अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी। अब मैंने किया है ह्यूमैनिटीज में बीए, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, मेरा क्या लेना देना है स्पेस टेक्नोलॉजी। बट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू, समझे। दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू कि भाई अनसर्टेन सिचुएशन में तुम हैंडल कर पा रहे हो। तो अगर उस टाइम पे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी पूछ लिया, तो अभी गैदर करना पड़ेगा अपने सेल्फ को। ये नहीं करोगे तो फिर तो पूरे 25 मिनट गए तुम्हारे। फर्स्ट 5 मिनट्स को तुमको इमोशनली जो भी पूछे, मैनेज इट, ब्लफ नहीं करना चाहिए, बट लाइक ट्राई टू गिव आंसर कॉन्फिडेंटली। तो वही मैंने तो GS3 में पढ़ा था, कुछ ना कुछ आ गया नेचुरली। GS3 में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते ही है, तो बोल दिया कि यस मैम स्पेस में है ये सब। और फिर मैम ने पूछा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया कि हाँ अब देखो GS3 पे जा रहा है, तो मेरा थॉट्स आ गए थे। और बाकी नेचुरली मेरा जनरली ऐसा होता है कि तुम्हारे होम स्टेट पे पूछते हैं, तुम्हारी हॉबीज पे पूछते हैं। मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे होम स्टेट से। मेरे को एक क्वेश्चन आया था मेरे हॉबी में, मैंने लिखा था आई प्ले तबला। तो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले तबला, और मैंने बोला यस, एंड दैट वाज इट। यही पूछा था हॉबी से क्वेश्चन। तो इंटरव्यू इज अनप्रिडिक्टेबल, तुमको पता नहीं है सामने क्या बोलने वाला है, बट जस्ट हैंडल इट। मैंने बोला ना, मैनेज द इमोशंस एंड यू विल मैनेज द इंटरव्यू। अभी तो मार्क्स नहीं आए, मार्क्स आएंगे तो विल कॉन्फिडेंटली से अबाउट इंटरव्यू। बट दिस इज हाउ द एक्सपीरियंस, बहुत कॉर्डियल रहता है और लाइफ टाइम याद रहेगा। जब भी तुम लोग जाओगे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ तो कर लिया है अभी। Good morning, sir. मॉर्निंग, Congratulations. थैंक यू सो मच। So my question is to how to handle the pressure in interview. भाई पहले प्रीलिम मेंस का इंटरव्यू, तू प्रेशर हैंडल कर ले, तू इंटरव्यू का संभाल लेगा, सर फिर उसका भी मत सोच। बैकअप प्लान के लिए कुछ तो मेंटेलिटी रहेगी ना उसके। देखो यार, इंटरव्यू का प्रेशर टॉपर भी हैंडल नहीं कर पा रहे। अभी तुम ऑल इंडिया रैंक 1 को भी पूछोगे ना, तो वही वो भी यही बोलेगी कि मैंने भी हैंडल नहीं कर। तो प्रेशर तो रहेगा, उसको मैनेज करना है थोड़ा अच्छे से अपने इमोशंस को। मतलब जो अंदर फटती सबकी है, पर दिखाना नहीं है कि मेरी फटी है। बस यही है, थोड़ा मास्क पहनना सीख लाओगे, क्योंकि यही है आगे के जाके, यही करना है तुमको, डिस्ट्रिक्ट संभालना है। तो कोई भी ऐसा होगा, कुछ सिचुएशन आएगी जब सब प्रेशर में होगा, तो यू डू नॉट हैव टू। अब लीडर कैन नॉट बी अ प्रेशर, क्योंकि लीडर अगर डर गया तो सब डर गए, ऐसा है ना। तो थोड़ा माइंडसेट ऐसा रखो कि अब बन गए तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली दे पाओगे इंटरव्यू। पर मोर मैं तो यही बोलूंगा, अभी इंटरव्यू का छोड़ो, प्रीलिम मेंस में फोकस करो। वो होगा तो ऑटोमेटिकली इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रीलिम्स में भी तुम अच्छा कर लोगे। और बस ब्लफ नहीं करना इंटरव्यू में, बस झूठ मत बोलो तो बाकी सब सही है। उसमें वो लोग दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, दे आर टेस्टिंग योर कैरेक्टर एंड योर वैल्यूज। अगर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पूछते, उसमें से 5 में मेरे दोस्तों ने बोले हैं कि आई डू नॉट नो, आई एम नॉट अवेयर, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, 180 प्लस आए हैं। सो दे डू नॉट टेस्ट नॉलेज, दे टेस्ट योर कैरेक्टर, दे टेस्ट योर इंटीग्रिटी, आपके इमोशंस मैनेज करने की क्वालिटी क्या है उसको टेस्ट करते हैं। तो दैट विल बी हैंडल यार, वो जब आएगा देख लेंगे। तुम अभी कर लो, बस प्रीलिम्स कर लो। हेलो, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। यस यस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, जो आंसर राइटिंग रिगार्डिंग बहुत सारा फेयर फैक्टर होता है, क्योंकि सब कुछ गेम आंसर राइटिंग का है, बराबर। तो उसमें ना पहले से टॉपर्स का जो भी आंसर राइटिंग है, उसके बेसिस पे मैक्सिमम टेम्पलेट्स बना के रेडी रखने चाहिए क्या? बहुत सारे से कोर टॉपिक होते हैं हर GS1, GS2, GS3, GS4 में, इंक्लूडिंग एसए में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जिसकी पहले से नोट्स मेकिंग या तो पहले से की पॉइंट्स या तो आंसर राइटिंग का एक स्ट्रक्चर टेम्पलेट फॉर्मेट रेडी करके रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक इट रेडी, क्योंकि ना टाइमिंग देखो, 8 मिनट में सोचना है, लिखना है, स्ट्रक्चर भी करना है। तो
रट्टा तो बहुत मारना पड़ेगा मेंस में। अभी मैंने तो ऐसा बनाया था, मैंने सिन बुक बनाई थी मेरे मेंस के लिए, कि ये सिन मतलब ये टॉपिक्स में से अगर मैं नहीं लिख पा रहा तो दैट इज सिन फॉर मी, दैट इज कर्स फॉर मी। तो मैंने सिन बुक में ऐसा लिखा, जैसे जीएस वन में कुछ टॉपिक्स है, सोसाइटी में से कुछ भी आए यू हैव टू बी रेडी। उसमें आप वुमेन का कुछ आए तो यू हैव टू बी रेडी। पीडब्ल्यू जैसे फिजिकली वीक सेक्शन के लिए कुछ आ रहा है, ट्रांसजेंडर के लिए आ रहा है, वैसे ही हर एक पेपर में जीएस 1 2 3 4 में ऐसे टॉपिक्स है, वो बहुत अच्छे से आप पहले से रट्टा मार सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। रेडी टेम्पलेट, जैसे टेम्पलेट बोल रहे हो, टेम्पलेट पीपल यूज, जैसे पेस्टल अप्रोच आता है कि पॉलिटिकली, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, वो पेस्टल अप्रोच होता है, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो टेम्पलेट्स, यस यू शुड गेट इट रेडी, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा कि जब आप प्रेशर में होते हैं ना, तो आप नेचुरल टेंडेंसी में आ जाते हो। तो नेचुरल टेंडेंसी जो होती है ना, तो वो जिसमें आपको बहुत याद होगा ना, बहुत नेचुरल जो आपके पास होगा, इंटरनलाइज नॉलेज ही याद आएगा। जैसे बहुत प्रेशर में तुम बहुत क्रिएटिव नहीं बन सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले से ही टेम्पलेट्स है या फिर पहले से ही ऐसे कुछ टॉपिक्स है, उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करो। जैसे जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी है, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल बिफोर एंड, कि जैसे उसमें से बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं। फिर जीएस 2 में गवर्नेंस है, उसमें भी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनजीओज वाला आता है, एसएचजी वाला आता है। तो अभी इसमें यू कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक एट दैट टाइम, यू हैव टू, ये सब का थिंकिंग पार्ट तुमको पहले कर देना है। अब जैसे एसएचजी, एनजीओ या फिर टेररिज्म पे कुछ क्वेश्चन आया है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आया है, तो उस टाइम पे तुम सोचने नहीं बैठ सकते कि अब मैं सोचूंगा, अब मैं स्ट्रक्चर, ये सब तो क्या है कि सिन है। तुम अगर तुम उस टाइम पे सोचोगे तो यू आर गिविंग अवे टाइम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि जहां तुमको आइडिया भी नहीं है, तुमने फर्स्ट टाइम फेस किया होगा, तो यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट क्वेश्चंस। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप हैंडल करो पहले से। जैसे जीएस 1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फिर ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड थोड़ा। ये सब कैसा है कि जीएस 1 तो मैं तो बोलता हूँ जीएस 1 में कम लिखना है, अगर जीएस 1 अच्छे से करता हूँ ना तो। क्योंकि जीएस 1 में देर इज मल्टीपल स्कोप की डायग्राम्स यूज कर सकते हो। ज्योग्राफी में तुम डायग्राम्स डालो, पहले से प्रिपेयर करो इसके टेम्पलेट्स। साइक्लोन आया तो साइक्लोन दूर हो, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था ट्विस्टर्स पे। अब ट्विस्टर पे मेरे को, आई हैव नेवर हर्ड बिफोर, बट मेरे को इतना इतना याद है कि मेरे को कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम रहते हैं। उसमें से एक ना ट्विस्टर था, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला। अब इतना ही पता था मेरे को। तो हाउ आई हैंडल, मैंने सिंपल किया, पहले कुछ इंट्रोडक्शन लिख दिया कि रीजन वाइज, कि इट इज लो प्रेशर सिस्टम अराउंड मैक्सिको के अराउंड। तो उसके बाद मेरे पास है कंटेंट कम, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। आई क्रिएटेड अ डायग्राम ऑफ ट्विस्टर, और उसके बाद साइड में ही मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको जोड़ दिया, ड्रॉ कर दिया, सॉरी। तो उसके लिए मैंने, ये सब हैंडल हो जाता है फिर। तो ये पहले से टेम्पलेट करो। ये ज्योग्राफी में डायग्राम्स है, फिर इकोनॉमी में या फिर गवर्नेंस में पेस्टल अप्रोच है, दिस विल हेल्प अ लॉट। ये सब तुमको बिफोर एंड करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा मेंस में, क्योंकि मेंस में 3 घंटे में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट 20 क्वेश्चंस को खत्म करना। तो यस, यू हैव टू प्रिपेयर दिस बिफोर हैंड, थोड़ा टेम्पलेट्स यूज करो, दिस विल हेल्प अ लॉट। GS1, GS2, GS3, GS4 सबके 100 नियर अबाउट टॉपिक जो लास्ट 4 to 5 years के PYQ बेसिस पे रहते, उसके अच्छे से प्रॉपर मिस अपने नोट्स मेकिंग कर लिया और आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बना लिया। प्रॉपर कंटेंट पहले से ही रेडी कर लिया। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने पहले से ही रेडी करके लिए। तो ये सब सब सब्जेक्ट के लिए GS1 2 3 4 के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कंक्लूसिव यही होता है कि टारगेट होता है सब मैक्सिमम आंसर में अपना इम्पैक्ट रहना चाहिए, ज्यादा करके रैंकिंग होगा, ये सब चीजें यही स्टूडेंट को हम लोग बार बार बताते हैं, लेकिन ये लोग उनको थोड़ा लाइटली लेते हैं। नहीं नहीं, ये लाइटली वाइटली मत लो भाई, ये इतना करोगे बहुत हो गया, इतना कर लोगे तो टॉपर बन जाओगे अच्छे से। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि क्या है कि प्रेशर सिचुएशन में वैल्यू एडिशन इम्प्रॉम्प्टू नहीं हो पाएगा। अगर तुमको अभी जैसे, फॉर एग्जांपल मैं अभी तुमको दे दूंगा कोई क्वेश्चन जो तुमको आता भी है, स्टिल मैं अगर आपको 8 मिनट का टाइम दे दूंगा ना, तो यू विल राइट द वर्स्ट आंसर राइट नाउ, क्योंकि तुमको पता है कि वैल्यू एडिशन नहीं कर पाऊंगा, मोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम लिख दोगे। तो क्या ये वैल्यू एडिशन ना बिफोर हैंड अगर प्रिपेयर करे। अब पीवाईक्यू से हेल्प ये होती है कि थीम्स रिपीट होती है, थीम्स रिपीट होती है तो थीम्स के अराउंड के कुछ फैक्ट्स हैं। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो उसमें नीति आयोग का कुछ देख लिया,
या फिर सारे गोल्स याद है तो कंक्लूजन में बहुत हेल्प हो जाती है। एसडीजी तो मैं बहुत यूज करता था, अपने कंक्लूजन में यही लिख देता था कि दिस विल हेल्प फॉर दिस, फॉर जैसे वुमन का हो गया तो कुछ जेंडर इक्वालिटी वाला कुछ कर लिया, या ये SDG 5 SDG 10 रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये सब टेम्पलेट्स यूज करोगे तो देट विल गिव यू एन एज। तो अच्छा रहेगा, वो तुम्हारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी होगा। तो अभी से करोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ओवरऑल अभी सबका सब मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गए शायद। अभी ये सब पढ़ाई करके आप जैसे टॉपर बनेंगे। और वर्नाकुलर का जो फोमो था उनका वो भी आपने निकाल दिया कि अरे मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है ना, हम मराठी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो हमें उसको ओवरकम कैसे करना है, तो वो भी मैंने आपने अच्छा किया। और प्री को कैसे टैकल करना है, मेंस को कैसे टैकल करना है। यस, नहीं आप वर्नाकुलर का कुछ लो नहीं, आप किसी से कम नहीं हो भाई, सब ठीक ही है, नॉलेज का गेम है। या हम इतना सोचते हैं तो फिर तो बन ही नहीं पाते ना। इतना कुछ नहीं है, जस्ट अपना हार्डवर्क करो अपने गोल के, और जो है अपने को जो बनना है उसको दिमाग पे रखोगे तो मोटिवेशन की कमी नहीं पड़ेगी। माँ बाप को देखो, आशीर्वाद लो उनके, उनको देखोगे मोटिवेशन की, और कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी परसिस्टेंट एंड यू विल गेट द 3 अल्फाबेट्स इन योर नेम, IAS। चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड होपिंग टू सी यू ऑन दिस साइड ऑल्सो। चलो, थैंक यू सो मच। वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत अच्छा आपने जो सेक्शन लिया उसमें ये जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये भी नेक्स्ट ईयर जरूर ऑल ओवर इंडिया रैंक पहले 10 में या तो पहले 50 में आने के लिए तैयार रहेंगे। और आपको जरूर कांटेक्ट करके आपको बताएंगे कि सर आपका ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था कि लास्ट में जो 10 to 20 डेज में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे खुद को माइंड को हमें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमारे पोटेंशियल को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। ये वर्ड भी उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया ना, तो जरूर ये कहीं ना कहीं टॉप रैंकर जरूर बनेंगे सर। Yes, yes, sure, sure. Thank you so much for everyone. We'll see you guys on the top list. Bye. थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Thank you.